Hello everyone, welcome back to the channel The Coding Icons, and in this video I am going to tell about the TCS NQT coding questions. And today I am going to tell that what are the last year questions and then topics, and then I am also going to tell the some tricks so that you can clear your NQT, right? So let's get started with the video without any delay, and please watch this video till the end so that you can understand what are the questions and how to solve those questions and how to approach the problems, right? तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप एंड तक देखते रहिए। सो इस वीडियो में मैं दो क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने वाला हूँ विथ आंसर विथ अप्रोच, जो भी आप कहें, राइट। और बहुत ज़्यादा सिंपल वे में मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको, राइट। सबको पता है कि 2023 बैच के लिए 15 अगस्त के आसपास मतलब एग्ज़ाम है एनक्यूटी का, राइट। एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी क्रूशियल चांस फॉर यू गाइज ऑफ 2023 बैच सो दैट यू कैन गेट प्लेस इन द TCS, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द प्रॉब्लम स्टेटमेंट 1। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट 1 है हमारे पास, गिवन अ स्ट्रिंग एस, इट मीन्स वी हैव अ गिवन अ स्ट्रिंग लाइक एस, like we can say that this is a input, right? And then this string contains what? Asterisk and hash, right? So here we can write that asterisk and hash, right? The whole string is contains with asterisk and hash. The length of the string is variable, right? So if we don't know about the length of the string at the initially, the task is to find the minimum number of this and this to make it a valid string, right? So the string is considered valid if the number of asterisks and hash are equal, right? It means asterisk equal to hash, right? It should be equal to 1, right? It should be equal. And then the star and hash can be at any position in the string. It means we don't have to worry about the position, like first one is star, second one is hash, then hash, why hash came, here should be star. No, position कोई भी हो सकता है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है position in the string can be at any, right? The output will be a positive or negative integer based on of the number of these asterisks and hash in the input string. If this, it means asterisk count is greater than hash count, right here, then the answer should be in positive. And if we do the reverse of this, like hash is greater than asterisk, then negative result. And if both are equal, right, then answer should be 0, right? So this seems like it is a very easy questions, right? So you can attempt it. So here is the example given, like hash, it means we have 3 hash, and asterisk, it means 3 asterisks. It means both are equal, right? Both are equal, hence it should be 0. Answer should be 0, right? So here is the output is 0. So basically क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन, ये कहना चाह रहा है कि यदि एस्ट्रिक्स का काउंट जो है वो हैश के काउंट से ज़्यादा हुआ तो हमारे पास पॉजिटिव में आंसर आना चाहिए, और यदि हैश का काउंट एस्ट्रिक्स से ज़्यादा हुआ तो हमारे पास नेगेटिव में काउंट आना चाहिए, आउटपुट जो भी है। और यदि दोनों के काउंट जो है इक्वल हुए तो हमारे पास क्या 0 आना चाहिए, राइट? तो बेसिकली हमको इसमें करना क्या है, हमको इसमें ये करना है कि सबके काउंट फाइंड करना है, राइट? यदि हम सबके काउंट फाइंड कर लेते हैं, मतलब एस्ट्रिक्स के हम यदि काउंट फाइंड कर लेते हैं कि कितना हो रहा है, हैश का काउंट कितना हो रहा है, उसके बाद से हम कंपेयर करके और माइनस कर सकते हैं, राइट? व्हाट डू यू थिंक? सो ये अप्रोच जो है, ये अप्रोच मतलब चलेगी। सबसे पहले हमको दोनों को काउंट करना होगा, उसके बाद में माइनस करके चेक करना होगा कि कौन सा पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा या फिर 0 आएगा, राइट? सो चलिए अब हम इसका सोल्यूशन को देख लेते हैं यहाँ पे, राइट? सो जो मैंने अप्रोच बताया है वैसे ही सोल्यूशन यहाँ पे कर रखा है, तो देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले तो हमने हेडर फाइल यहाँ पे इंक्लूड किया है, और ये जो सोल्यूशन है ये C++ में है, राइट? एंड उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std, उसके बाद हमारे पास मेन फंक्शन है यहाँ पे, उसके बाद हमने स्ट्रिंग यहाँ पे ली है जो कि इनपुट स्ट्रिंग होने वाली है, और हमने a एंड b नाम के 2 वेरिएबल्स हमने यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं, राइट? जिनको इनिशलाइज़ किया मैंने 0 से, क्योंकि हमको क्या करना है, हमको एस्ट्रिक्स एंड हैश को काउंट करना है, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस। एंड हियर वी आर टेकिंग इनपुट एज ए स्ट्रिंग, राइट? सो यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास हैश एस्ट्रिक्स हैश एस्ट्रिक्स ये यहाँ पे हमारे पास इनपुट ले रहे हैं।
उसके बाद क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हैश को और स्ट्रिक्स को काउंट करना है, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे काउंट कर रहा हूँ। यदि सबसे पहला जो कैरेक्टर है या फिर कोई भी कैरेक्टर है यदि वो हैश है तो हमको क्या करना है, A++ करना है। मतलब A के अंदर क्या होगा, A इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, काउंट ऑफ हैश आ जाएगा, राइट। और उसके बाद नहीं हुआ और यदि हमारे पास एस्ट्रिक्स हुआ आई वैल्यू पे स्ट्रिंग के, राइट, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, काउंट ऑफ हैश एस्ट्रिक्स हो जाएगा, राइट। काउंट ऑफ एस्ट्रिक्स क्या स्टोर करेगा, ये स्टोर करेगा बी वैल्यू क्या स्टोर करेगा, काउंट ऑफ एस्ट्रिक्स, राइट। तो हमारे पास क्या आ गया, सपोज कीजिए हमारे पास आ गया ए एंड बी आ गया, जो कि ये हैश का काउंट है और ये एस्ट्रिक्स का काउंट है। यदि मैं बी में से माइनस करूँ ए को, राइट, बी में से ए को माइनस करूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर की बात करिए यहाँ पे, राइट। तो यदि मैं b में से a को माइनस करूं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ना। सपोज कीजिए एस्ट्रिक्स की जो वैल्यू है b की ये है 5 और हैश की जो वैल्यू है ये है 6, देन इफ़ यू डू 5 - 6 देन वी विल गेट -1। मतलब कि एस्ट्रिक्स माइनस हैश करेंगे तो नेगेटिव में वैल्यू आ रही है। क्या हमारे पास ऐसा था, एस्ट्रिक्स माइनस हैश करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव में वैल्यू आ रही है। एस्ट्रिक्स माइनस हैश इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन है, मतलब हैश की वैल्यू बड़ी है, राइट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हैश की वैल्यू क्या है, बड़ी है। हैश की वैल्यू बड़ी है यहाँ पे किससे, एस्ट्रिक्स से, राइट। तो हैश की वैल्यू यदि एस्ट्रिक्स से बड़ी है तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, -1, राइट। यदि ये बड़ा होगा एस्ट्रिक्स से तभी तो -1 आएगा हमारे पास, आंसर माइनस में आएगा, राइट। इसमें क्या होगा कि एस्ट्रिक्स से जो है हैश की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, देन वी विल गेट द करेक्ट आंसर। और यदि इक्वल हुआ तो हमारे पास 0 आ जाएगा, और यदि एस्ट्रिक्स की वैल्यू ज़्यादा हुई मतलब 6 -5 अपोजिट हो गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, यानी पॉजिटिव में आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस को करना है। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये सिंपल क्वेश्चन देखने में इजी लगते हैं बट वो यदि करने हम जाते हैं तो टेस्ट केसेस फेल हो जाते हैं, बट उस केस में आपको ध्यान रखना है कि करना क्या है। और ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये फॉर लूप में भूल गया था समझाना, तो फॉर लूप आप देख लेना क्योंकि बहुत ईजी है ये। i = 0 से स्टार्ट होता है, साइज़ तक चलेगा। साइज़ एक मेथड होता है, फंक्शन होता है स्ट्रिंग की लेंथ काउंट करने के लिए, राइट, C++ में। तो ये है जो कि पहला क्वेश्चन था हमारा, बहुत इजी क्वेश्चन था। और इस टाइप के क्वेश्चन जनरली आते हैं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हैं, राइट। पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन में से कुछ चूज़ किया है और ये उनमें से कुछ एक है। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह है, थोड़ा बहुत ट्रिकी है ये, राइट। क्वेश्चन ये है, गिवन एन इंटीजर एरे, राइट। तो हमारे पास एक सपोज कीजिए एरे दे रखा है, इंटीजर एरे, ठीक है। एरे ऑफ साइज n, इसकी साइज़ कितनी है, इसकी साइज़ n है। एंड द टास्क इज़ टू फाइंड द काउंट ऑफ एलिमेंट्स हुज वैल्यू इज़ ग्रेटर देन ऑल ऑफ इट्स प्रायर एलिमेंट, राइट। तो हमको वो वैल्यू फाइंड करनी है जो कि ग्रेटर देन है किससे, पिछले कुछ एलिमेंट्स है। जैसे कि मैं एग्जांपल्स आपको बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे शुड बी कंसिडर्ड इन द काउंट ऑफ द रिजल्ट। जो पहला मतलब कि एरे का नंबर होगा, जैसे 2, 4, 6, ये फर्स्ट जो होगा मतलब हमेशा काउंट में क्या होगा, काउंट में स्टोर होगा, राइट। तो हम इसको स्टोर करवा सकते हैं काउंट में पहले से भी, या फिर लास्ट में भी ऐड 1 कर सकते हैं। कंस्ट्रेंट्स हमारे पास कुछ दे रखे हैं यहाँ पे कि जो n की वैल्यू है वो 1 से बड़ी और 20 से छोटी होगी और बराबर होगी, और एरे i की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी एंड 10,000 से बराबर और लेस देन होगी, राइट। तो आप देखिए यहाँ पे एग्जांपल से आप समझते हैं, हम मतलब समझते हैं कि क्या है आखिर में ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। यदि मान लीजिए आपको समझ में नहीं आता है क्वेश्चन पढ़ने के बाद लॉजिक, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एरे एक दे रखा है, वो ये एरे है। एज 7 इज़ द फर्स्ट एलिमेंट, 7 फर्स्ट एलिमेंट है तो मतलब काउंट में ये कंसीडर होगा, राइट। तो काउंट की वैल्यू हमारे पास पहले 0 मान लेते हैं हम थी, अब कितनी हो गई, अब 1 हो गई। अब 8 and 9 आर ऑल्सो द एलिमेंट्स दैट आर ग्रेटर दैन ऑल ऑफ इट्स प्रीवियस एलिमेंट्स,
राइट। 8 और 9 ऐसे एलिमेंट्स दो हैं जो कि अपने प्रीवियस एलिमेंट से बड़े हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 है, ये प्रीवियस एलिमेंट की बात करें तो 4 और 7 दोनों से बड़ा है, इसीलिए हमने इसको काउंट किया। तो यहाँ पे एक और 1 आ गया हमारे पास। उसके बाद में हम 9 की बात करें तो 2, 8, 9, 7, 4 सबसे बड़ा है, यानी एक और 1 आ गया यहाँ पे, राइट। हमारे पास आ गया यहाँ पे 3, इट मीन्स आउटपुट इज़ 3। अब आप सोचेंगे कि 8 क्यों नहीं है, 4 क्यों नहीं हुआ। 4 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 4 जो है 7 से छोटा होता है, और यहाँ पर 2 की बात करें 2, 8, 4, 7 सबसे छोटा होता है, इसीलिए मतलब कि हमने इसको काउंट नहीं किया। और मान लीजिए यहाँ पे 8 की जगह 1 होता और यहाँ पे 4 होता, 7 होता, तो भी काउंट नहीं करते क्योंकि 4 और 7 प्रायर एलिमेंट 2 के हैं, बट स्टिल यहाँ पे सारे एलिमेंट जो है वो 2 से बड़े हैं, मतलब कि दोनों यहाँ पे एलिमेंट्स बड़े होते 2 से, इसलिए हम काउंट नहीं करते। काउंट करने के लिए यहाँ पे तीनों एलिमेंट छोटे होने चाहिए, मतलब यहाँ पे भी 1 हो सकता था, यहाँ पे भी 1 हो सकता था, यहाँ पे भी 0 या फिर 1 कुछ भी हो सकता था, राइट। तो हमारे पास मतलब ऐसा होता है कि हाँ हम काउंट इसको करें, राइट। तो ये है हमारा क्वेश्चन। अब इसके लॉजिक देखते हैं कि मतलब कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या अप्रोच रहेगी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे मैनेज कर सकते हैं, राइट। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन। यदि आप इसको जनरली करने जाएंगे तो आराम से आपका मतलब कि O ऑफ n स्क्वायर लग जाएगा, राइट। क्योंकि आप 2 लूप से चेक करेंगे, पहले एलिमेंट को, फिर दूसरे एलिमेंट को चेक करेंगे, फिर तीसरे एलिमेंट को उससे चेक करेंगे, तो O ऑफ n स्क्वायर लग जाता है अप्रॉक्स, राइट। तो वो जो है, ये जो है रॉन्ग अप्रोच है, ये O ऑफ n स्क्वायर नहीं ले सकते क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो रही है और सारे टेस्ट केस आपके सॉल्व नहीं होंगे, राइट। तो इससे आपको कम जो कॉम्प्लेक्सिटी होगा उसमें आंसर देखना होगा जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। और ये क्वेश्चन यदि आप करते हैं तो आप इस सॉल्यूशन को यदि आप करते हैं तो आपके मतलब सारे टेस्ट केसेस क्लियर हो जाएंगे। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले वही हेडर फाइल, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std, उसके बाद मेन फंक्शन, देन वी हैव n। सबसे पहले मैं n लूँगा जो कि होगा साइज़ ऑफ एरे, राइट। एरे की साइज़ के लिए मैंने n ले रखा है यहाँ पे। उसके बाद वाइल n -1 है, मतलब कि सारे एलिमेंट के लिए मैं चेक कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने कोई अलग से एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ली है, राइट। सो हियर यू कैन सी दैट आई हैव ऑप्टिमाइज्ड स्पेस आल्सो टू O ऑफ 1, राइट। क्योंकि पहले वहाँ पे बोल रखा था कि एक एरे है उसकी साइज़ n है। सो यू मस्ट हैव डिक्लेयर्ड, इफ़ यू आर डूइंग बाय योर ओन देन यू विल डू लाइक एरे of n, then you will use for loop and then you will see in all elements one by one, right। तो ऐसे आप करेंगे तो इसमें क्या होगा कि इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी जो है यहाँ से वो थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, राइट। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑफ n हो रही है, इसको भी मिनिमाइज़ मैंने किया है। मैंने क्या किया है कि मैंने जैसे ही एलिमेंट को लिया, मतलब इनपुट जैसे ही लिया वैसे ही उसके सारे प्रीवियस एलिमेंट से मैंने चेक कर लिया, राइट। वो मैंने यहाँ पे कंडीशन और यू कैन से दैट लॉजिक मैंने यहाँ पे बिल्ड करके लिखा है, राइट। तो देख सकते हैं आगे यहाँ पे क्या है, c = 0 मैंने लिया है, एक वेरिएबल लिया है जो कि काउंट करेगा कि कितने वैल्यू है जो कि प्राइमरी एलिमेंट से बड़ी है। यहाँ पे मैंने एक a लिया है जो कि इनपुट होगा, हर एलिमेंट को मैं अलग अलग इनपुट ले रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने एक m int min ले रखा है जो इनिशियल वैल्यू को चेक करेगा, पहली वैल्यू को, उसके बाद में फिर नेक्स्ट प्राइमरी एलिमेंट से चेक करता जाएगा उससे। अब यहाँ पे देख सकते हैं वाइल n -1, ये जो है मान लीजिए हमने n की वैल्यू 5 ली तो ये पहले 5 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3, 2, 1 ऐसे होगा, राइट। मतलब कि 5 इनपुट लेगा और 5 इनपुट के बाद में जो भी मैंने इसके अंदर लिखा वो चेक करेगा। तो सपोज़ कीजिए हमारे पास एरे था, क्या था, 3, 4, 5, 8, 9, राइट। 3, 4, 5, 8, 9 वी हैव दिस एरे। तो इनिशियली हमने यहाँ पे क्या लिया, 3 लिया और 3 को किससे कंपेयर किया, हमने इंट min से कंपेयर किया कि क्या 3 जो है वो m से बड़ा है। m से बड़ा है तो हमने क्या किया, m की वैल्यू हमने यहाँ पे चेंज करके हमने a डाल दिया, ठीक है। m की वैल्यू में a डाल दिया। और यदि पहले वैल्यू को तो हमको काउंट करना ही है तो c++ किया, तो अब c की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई यहाँ पे, राइट। अब नेक्स्ट टाइम हमने क्या किया, नेक्स्ट टाइम 4 लिया हमने, राइट।
4 हमने लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा आप देख सकते हैं, वापस कंपेयर होगा। 4 जो है 4 चेक होगा क्या ग्रेटर दैन m है, m यानी अब हमारे पास m3 है, ग्रेटर दैन m है, यस इट इज़ राइट। तो यहाँ पे आप ले सकते हैं कि हाँ ग्रेटर दैन 1 है, तो ये भी एक मतलब वैल्यू हमारे पास होगी। वेट मैं चेक कर लूँ एक बार, हाँ सही है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, 4 जो है वो ग्रेटर दैन 3 है, तो m की वैल्यू अब क्या हो गई, अब हो गई हमारे पास 4। एंड यहाँ से मैं ये वाला लॉजिक अप्लाई कर रहा हूँ, और C++ होने के बाद जो वैल्यू आ गई 2 आ गई उसकी, राइट। अब हम वैसे ही 5 से चेक करेंगे तो 5 से भी बड़ा है, और 8 से भी बड़ा है एलिमेंट, और 9 से भी बड़ा है, तो मतलब यहाँ पे भी +1 होगा, यहाँ पे भी +1 होगा, यहाँ पे भी +1 होगा। तो 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5, इट मीन्स वी विल हैव आउटपुट एज C की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, जो कि यहाँ पे दे रखा है, C की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी, राइट। तो मतलब आपको चेक करना है इससे। अब आप ये पूछेंगे मेरे से कि प्राइवर एलिमेंट सारे से बड़ा कैसे हुआ। बड़ा इसलिए हुआ क्योंकि हम यहाँ पे बार बार चेक कर रहे हैं उसके पिछले वाले एलिमेंट से। यदि हम एक एक एलिमेंट से चेक करते हुए जा रहे हैं तो लास्ट में क्या होगा, सबसे बड़ा ही आएगा ना हमारे पास, क्योंकि जो हमारे पास सिलेक्टेड वैल्यू होगी वो प्रीवियस एलिमेंट से बड़ी वैल्यू होगी। दैट्स वाई वी आर डूइंग लाइक दिस, राइट। सो ये भी क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। और यही इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं, एनक्यूटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त में उसमें आ सकते हैं, तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन के, राइट। तो बस इस वीडियो में मैं यही 2 क्वेश्चन बताना चाहता था। यदि आपको वीडियो लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे फ्यूचर में आने वाले कोई भी वीडियो मिस ना हो। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि रीजनिंग की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट होने वाली है 27 जुलाई से, तो आप देखना ना भूलना। बहुत इजी वे में मैंने बताया है, बहुत अच्छे से समझाया है, राइट। और ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर करूँगा मैं डे बाय डे, राइट। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट टाइम बाय बाय, टेक केयर।